So again, welcome to the PYQ series of linear programming. So today we'll be solving linear programming problems from 2021. Basically, PYQs will be solving. So let me tell you few things at the very start. So if you analyze the PYQs in LPP, some questions are very much repeated. Like almost every year, simplex method is repeated. Almost on alternate year, bigger method is repeated. Almost every year, assignment problem, transport problem comes up. So these are the favorite topics for the linear programming problem part. So I would suggest you to just go through the basic procedure, like how we solve simplex, what are the processes, what are the steps, and if you know the heuristics for just one single question, on the basis of the heuristic that you have learned, you can solve any number of questions. Condition to the subject that you have to do the calculation accurately. So if all the steps are satisfied, all the calculations are done accurately, you will surely get the final solution, final answer. So coming to the first problem. So this is a department, a company has 5 employees, 5 jobs to be performed, and given in the effect, okay, the time that each man takes to perform is given in the effectiveness matrix. Assign all of the 5 minutes to minimize the time. ठीक है, मतलब this is nothing but the assignment problem, and इस type of problem we have already done in 2023. Let me show you how. ये वाला सवाल हमने किया था पहले कि जॉब था, असाइन करना था हमें सबऑर्डिनेट को. सेम ह्यूरिस्टिक बिहेव विल आल्सो अप्लाई, सेम चीज़ करेंगे. And if you do the process accurately, calculation correctly, there is no any chance that you will not get the final solution. So I'm not doing it, I'm just giving you the what we have to do, just making for you to do your own calculation. What I'm doing here, just you are revising your theory part. Like theory क्या होता है कि इस टाइप में क्वेश्चन में यू हैव टू अप्लाई हंगेरियन मेथड में क्या होता है, लाइक फॉर दैट आई मे हेल्प यू इन दिस वे दैट आई कैन गिव यू थियरी पार्ट. लाइक थियरी रिवाइज करा सकता हूँ. तो थियरी में क्या होता है कि लाइक हंगेरियन मेथड में क्या होता है कि हंगेरियन मेथड में होता है कि लाइक आप सबसे पहले इस एलिमेंट्स, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट निकालो सारे रो में और उसको घटा दो सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. ठीक है, देन ये दिस विल बी स्टेप 1. स्टेप 2 विल बी जो भी जीरो आया है उसको ट्राई टू कवर विद लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस. सो पहले हमने क्या करा कि मिनिमम एलिमेंट को घटा दिया, तो ऐसा कुछ आ गया. अब चूँकि मिनिमम एलिमेंट को जीरोज को लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने. पहले तो जीरो बनाया मिनिमम एलिमेंट से घटा के, फिर उसको मिनिमम स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर अप किया. अगर ये स्ट्रेट लाइन का काउंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है तो वी हैव नॉट अचीव द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमम असाइनमेंट रेदर. सो वी हैव टू गो थ्रू सेम इटरेशन विच वी हैव डन अर्लियर. बट यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ कि मतलब अनकवर्ड जो एलिमेंट है, विच वट एवर द एलिमेंट्स आर अनकवर्ड, उनमें से लीस्ट ढूंढो. उनमें से अनकवर्ड मिले से उसको सारे एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसको से घटा सकते हैं अपन, घटा दो. एंड जो भी इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये जो मिनिमम एलिमेंट था उसको जोड़ दिया. ये 2+7 हो गया, ये 10+12 हो गया. बाकी जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसको घटा देते, 2 घटा दिए, तो 3 में से 2 घटाया 1 हो गया. सेम चीज़ किया. बाकी जो एलिमेंट जो बचे रह गए, जैसे कि ये वाले एलिमेंट जो कि अनएड्रेस थे, उनको एज इट इज़ छोड़ देना है. सेम प्रोसेस कवर अप करने का है. अगर एन आर इक्वल्स टू जो कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर वो एन इक्वल्स टू ऑर्डर के बराबर हो जाता है, देन वी हैव अचीव्ड ऑप्टिमम. सो इफ यू डू दिस, you will get the final answer.
nothing new here, just do the manipulation, just do the correct calculation correctly, you will reach the final answer. So यहाँ पे ये नया प्रॉब्लम है, like we will be solving this problem. Like convert the following LPP in dual and minimize it. Here we have also been given that this edge of x3 is unrestricted. Basically there is no boundation on the sign of x3. x3 कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x1 और x2 पे बाउंडेशन है कि x1 और x2 हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, बट x3 में ऐसा कुछ बाउंडेशन है नहीं. सो हाउ वी अप्रोच इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू थिंग. इसमें क्या करते हैं कि अपन क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x3 विथ x3 डैश x3 माइनस x2 x3 डबल डैश. अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए लाइक अपन क्या करते हैं ना कि x3 डबल डैश बना देते हैं. ओके, नाउ इसका अब अप्लाई करेंगे कि x3 जो डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x3 डबल डैश ग्रेटर देन 0 है. इससे फ़ायदा क्या होगा कि लाइक हमारा जो बाउंडेशन का क्राइटेरिया था सिंप्लेक्स मेथड के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड रह रहा है. बिकॉज चूँकि x3 को अगर अपन ने जब इनफाइनाइट रखा तो ये इनफाइनाइट को जाएगा, तो x3 जब इनफाइनाइट को भी जा सकता है. अब x3 डैश डबल डैश को अगर हमने इसको इनफाइनाइट भेजा तो ये माइनस इनफाइनाइट को भी जा सकता है. तो कुल मिला के मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा सकते हैं. तो ये बेसिकली x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड बट इट्स कॉम्पोनेंट x3 डैश x3 डबल डैश आर रिस्ट्रिक्टेड. तो अब ये रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा. अब जहाँ जहाँ भी x3 है अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं x3 डैश x3 डबल डैश. बस यही करना है हमको. सो नाउ लेट्स अब क्या करते हैं कि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और रिप्लेस करते हैं x3 को. तो राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यू हैव ऑलरेडी रेड कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. इफ यू हैव नॉट, जस्ट गो टू थियरी पार्ट एंड रिवाइज देयर. सो फाइन. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि लाइक अपन जो ऑलवेज सिंप्लेक्स मेथड जब भी लगा रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 3 है तो अपन ग्राफ से हेल्प लेंगे तो इट कुड बिकम टीडियस. मतलब हमें विजुलाइज करने में थोड़ा दिक्कत होगा कि लाइक कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें. बट सिंपलेक्स मेथड का ये फ़ायदा है कि मतलब कितने भी वेरिएबल हो 3 4 5 वी कैन अप्लाई दैट. बहुत सारे मेथड है, बिगर मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, टू फेज मेथड है एंड ऑल which we have already studied. So we will be applying as per the need of the question, demand of the question. So क्या करते हैं ना कि लाइक अपन यहाँ पे मिनिमाइज टाइप का है तो अपन क्या करते हैं ना कि इसको मैक्सिमाइज बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऑलवेज थिंग सिंपलेक्स जब ये लगा तो मैक्सिमाइज करके बनाना पड़ेगा. तो मैक्सिमाइज दैट स्टार वुड बी नथिंग बट माइनस ऑफ मिनिमाइज साइड. तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं दैट स्टार को, बस फंक्शन चेंज किया है. अब यहाँ पे क्या आएगा कि माइनस x1 प्लस थ्राइस ऑफ x2 थ्राइस ऑफ x2 आई गेस. यस, एंड I think we are correct. Yes, and x3 प्लस ट्वाइस ऑफ x3. बस अब रखते हैं इस चीज़ को. अब x3 पुटिंग x3 मैक्स जेड स्टार इज माइनस x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 ट्वाइस ऑफ x3 डैश माइनस ट्वाइस ऑफ x3 डबल डैश. आई होप दिस इज करेक्ट. Yeah, great. Now we convert the following into dual, minimize
subject to, okay, and subject to thrice of x1 minus x2 plus 2 times of x3 x3 okay, twice of x3 अब यहाँ पे स्लैक लगा सकते हैं s1 equals to 7 and twice of x1 minus 4 of x3 minus slack 2 plus a1 12 minus 4x1 thrice of x2 x3 plus ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन we would get by putting, I hope we have done correctly, s1 को आप s2 को आप 0 पुट कर दो, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश को आप 0 पुट करोगे तो विल बी गेटिंग व्हाट, s1 को आप 7 हो जाएगा, वी गेट s1 को 7 हो जाएगा, a1 12 हो जाएगा, एंड देन व्हाट, a2 10 हो जाएगा, okay. Now what will do here, just now we switch to now manipulation, simplex matrix, simplex table, now using simplex table, but same process, we have already done this, I mean steps we have already done this, basic CJ CB CI क्या है, चूँकि अब मैं यहाँ पे अब चूँकि ये स्लैक इंट्रोड्यूस किया है तो उसको भी लिखना पड़ेगा अपन को, स्लैक में क्या इंट्रोड्यूस किया है, 0s1 0s2 minus m a1 minus m a2, I think we are correct, yes. Now let's navigate here, a1 a2 s1 कोफिशिएंट्स क्या है, -1 3 3 2 -2 0 0 0 0 minus m, yes, I hope this is correct, this is x1, this is x2, this is x3 double dash, x3 dash, this is x3 double dash, s1 s2 a1 a2, इसका कोफिशिएंट -m, इसका कोफिशिएंट -m, इसका कोफिशिएंट 0. Now the variables are
S1 का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास A1 की कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये है 2x2 minus 4 0 0 S1 is 0 S2 is minus 1 is 1 and B we have is 12 A2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है हमारे पास -4 3 यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 8x3 डैश माइनस 8x3 डैश डबल डैश 8 minus 8 0 0 ठीक है दिस इज 10 एंड S1 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है स्लैक 1 3 minus 1 3 minus 1 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 2 S1 is 0 0 this is 0 this is 0 7 बस स्टेप फॉलो करते हो जेड से ये -2 4 -2 -1 3 2 -2 plus 4 2m 4m 4m minus 3m ये 0 ये -8m ये 8m 0 m ये -m this is -m leave it as it is CZ good nothing but I hope we have done -2m 4m 2m 4m -3m ठीक है ये -8m 8m ठीक है ये 0 m ओके तो कुल मिला के ये तो 0 हो जाएगा ये -m हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा दिस विल बिकम आल्सो 0 दिस विल बिकम -2 minus 8m this will become 2 plus 8m this will become 3 minus m this will become -1 minus 2m I hope this is correct so maximum positive is this one so थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से ये तो इनफाइनाइट जा रहा होगा ये 10/8 7/2 so minimum is this is key element the key column है ये key row -4 3 key row okay now R2 को डिवाइड बाई 8 कर देते हैं R2 is nothing but R2/8 and try to make the key column 0 ये वाला की कॉलम 0 बनाते हैं ये की एलिमेंट again writing the same coefficients ये बेसिक CP चूँकि
यहाँ पे देख रहे हैं A2 इज़ आउट गोइंग एंड X3 डैश इज इनकमिंग. A2 is A1. A2 is outgoing. X3 dash is incoming. This is S3 S1. Coefficient -1. X3 का 2. S1 का 0. सेम X1 X2 X3 dash X3 डबल डैश S1 S2. अब चूँकि A2 गया तो A2 की मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, A2 का कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी जाता है तो वी नॉट नीड टू राइट दैट. तो कुल मिला के अब इसको अपन 1 बनाते हैं. तो ये -12, ये 3/8, ये 1, ये -1, ये 0 0, A1 भी 0, B is 10/8. Now what we will be doing है, क्या करते हैं कि अब we have to make the key column 0. तो key column 0 तो ऑलरेडी 0 है, तो ऊपर वाले में तो कुछ चेंज होगा नहीं, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी 0. 2 - 4 0 0 0 -1, A1 1, B is 0. Okay, B is 12, I guess, sorry. Yes. Now what we will be doing here, अब क्या करते हैं कि R3 को चेंज करते हैं. R3 को R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 न्यू. ये न्यू वाला है, ये न्यू होगा, ये ओल्ड है, ये ओल्ड ये है, ये न्यू ये. सो विल बी प्रोसीडिंग. तो इसको ये डबल किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से घटाया 0 हो जाएगा. अब इसको किया तो 3/4 सब्सट्रैक्ट किया. 3/4 -1 -7/4 आई गेस, -3/4 -1 -7/4. इसको करो तो -1 +1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा. अब इसको करेंगे X3 में क्या है, +2 ऐड करना है, +2 ऐड करना है 0 हो जाएगा. ये तो अब S1 ये तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो एज इट इज़ लिख देंगे इसे. अब इसको दोगुना करना है, दोगुना करेंगे तो ये -5/4 को ऐड करेंगे उसमें. -5/4 7 को 28, 23/4, 28 23/7 को 28, 28 में 5 23. ओके, सो नाउ आप जेज निकालेंगे तो दिस विल बिकम -2m, ठीक है. दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम -4m, समथिंग 3/8 3/4, ये 0 हो जाएगा. देन इट विल 0, ये 2 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा. ओके, ये भी 0 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये -m हो जाएगा. सॉरी ये CZ वुड बी, बस घटाना है, कोफिशिएंट लिख लेता हूँ मैं. -1 3 2 -2 0 0 -m. तो कुल मिला इसको घटाया तो 0 हो जाएगा, इसकी -m आ जाएगा. ये तो 0 ही है, ये 0 ही है. अब यहाँ पे घटाया तो ये 0 आ जाएगा. यहाँ पे समथिंग नेगेटिव समथिंग लिख नहीं रहा.
अब यहाँ पे घटाया तो 2m आ जाएगा। अब चूँकि मैक्सिमम यही है तो कुल मिला के यहाँ से ही अपना की कॉलम आ रहा होगा। एंड देन आफ्टर इफ यू कैलकुलेट थीटा है, थीटा को क्या करो तो ये 12 आ जाएगा। ये नेगेटिव तो छोड़ ही दो। ये 4 घटाया 23/8, 23/16 सॉरी। तो मिनिमम तो यही है। तो ये वाला कुल मिला के हमारा की कॉलम बन जाएगा। की ये हमारा की रो, की कॉलम। R3 को क्या करो, R3 को R3/4 कर देते हैं ताकि की एलिमेंट 1 हो जाए हमारा। और A2 here, x1 is incoming and x3 A1 is outgoing. So basic CB, basically coefficients, x1 x3 dash s1. CB we know what we know. CB minus 1 is 2. x1 x2 x3 dash x3 double dash s1 s2. अब a1 a2 की लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल को जब हट जाए तो वी डू नॉट नीड टू राइट दैट। ओके तो क्या करते हैं ना, बस अब इसको पहले करते हैं। इसको 4 से टीडीएस हो जाएगा थोड़ा सा। S1 भी 0 है, x3 भी 0 है, यहाँ पे आएगा। वी हैव टू फॉलो द ओरिएंटेशन, अदरवाइज घसकते आगे निकल जाए। यहाँ पे करा तो ये 1/4 आ जाएगा। S2 तो 0 है ही। B हमारे पास कुल मिला के 23/4 था, 23/8 हो जाएगा, 23/16 हो जाएगा। अब क्या करें ना अपन ने, अब इसको क्या करते हैं कि R1 को R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 न्यू, ये वाला न्यू है। R2 को R1 का हाफ, R1 हाफ, बिकॉज की कॉलम को मैं 0 करना है। तो R1 को जब हाफ से करा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि -7/16 32 हो जाएगा। -7/32 इसको ऐड किया यहाँ पे 3/8, ये 32, 8 चौको 12, 7, 5/32, 5/32। x3 में कुछ x1 में कुछ चेंज नहीं होगा। 1 - 1। अब इसमें क्या किया, 1/8। I hope we are correct. ठीक ही है, चौको के 12, 5/, ठीक है। S1 को R1 1/8 को ऐड करेंगे उधर S1 में, 1/8, 30/32 उधर ऐड करेंगे, 30/32 B में ऐड करेंगे, 10/8, 23/32, 23, 8 को 40, क्या हो जाएगा ये 63, 63/16, 32। ठीक है, अब इसका दोगुना करके घटाया तो ये 0, इसको दोगुना करके घटाया तो 7/8 ऐड करेंगे, 7/8 ऐड करेंगे तो -4 + 7/8, 8 को 32, -25, -25/8। ठीक है, अब x3 x2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको डबल किया, -12 घटाएंगे S1 से तो ये 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। S2 एज इट इज़ रह जाएगा।
एंड बी, अब इसको क्या करा कि -23/8 -23/8 को ऐड करेंगे B1 में 12 96 है -23 और 3 7 73/8। आई होप ये सब कैलकुलेशन एक्स्ट्रा साइड में है। इवन देयर विल बी कैलकुलेटर इन एग्जाम, यू कैन यूज़ दैट, पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी 0 पूरा, ये कुल मिला के समथिंग बहुत ही सीरियस बन रहा है। समथिंग 25/8 -5/16, सॉरी 25/8 प्लस 5/16, ये 0, ये 2, ये 0, ये -2, ये -12, ये -12 प्लस 1/4, ये 0, ये 1, समथिंग कुल मिला के 63/16 -73/8। तो इफ़ यू सी दिस कि अगर कोफिशिएंट लिखे हम इसका, तो यहाँ से कुल मिला के कोफिशिएंट -1 आएगा, यहाँ से समथिंग कोफिशिएंट आएगा 3 2 -2, ये 0, ये 0। इफ यू सब्सट्रैक्ट है C से -ZG, और विल कम, ये -1 ही आ जाएगा। ये समथिंग पॉजिटिव 3 से ज़्यादा है, 3 से कम है, तो कुल मिला के देखें हमें तो 16 और 8 दूना 50, 5 16 32 48, ये 3 से ज़्यादा आएगा, तो कुल मिला के नेगेटिव आ रहा है। हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना है बेसिकली। ये 0, ये 0, ये भी I hope this -12, S1 coefficient half -1/4, ये पॉजिटिव आ रहा है, how it could be। अब ये यहाँ से ये -1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो कुल मिला के 32 16 63 8 दूना 16 146। ऐसा ये नेगेटिव आना चाहिए, तभी चीज़ जाके काम बनेगा अपना। कुल साइन में गलती तो नहीं किया ना मैंने। -12 x1 का कोफिशिएंट -12, x2 का 1/4, व्हाट इज, इसमें यही प्रॉब्लम है कि लाइक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। कुछ भी गलती होगा प्लस माइनस रायता फैल जाता है पूरा। नेगेटिव आना चाहिए, अदरवाइज तभी बन पाएगा अपन को। चेक करना पड़ेगा। ओके, आई विल कमिट एट दिस क्वेश्चन एट लास्ट, देखते हैं टाइम कितना रहता है। सो कमिंग टू दिस, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। डुअल प्रॉब्लम में क्या करते हैं, डुअल में डुअलिटी प्राइमल, इस पे अपन क्या करते हैं कि लाइक जो लेट मी राइट, तो अपन कहते हैं कि इसको अपन रहने देते हैं, मैं चेक करके बताऊँगा। प्राइमल होता है, एक डुअल होता है। तो प्राइमल होता है, प्राइमल विच इज़ गिवन, विच इज़ द गिवन इक्वेशन, विच इज़ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। डुअल इज बेसिकली वी हैव टू फॉर्म। तो अब क्या करते हैं ना कि प्राइमल में क्या होता है कि लाइक प्राइमल में अगर एम कॉन्स्ट्रेन है,
एम वेरिएबल है तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे हो जाता है कि लाइक यहाँ पे एन एम, यहाँ पे एम कॉन्स्टेंट्स एन वेरिएबल। सो इसी फिलासफी का काम करते हैं। लाइक लेट मी शो यू हाउ वी डू दिस। क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज में वी हैव ऑलवेज रिमेंबर, जब मिनिमाइज करना हो तो वी हैव लोअर रिस्ट्रिक्शन, वी शुड हैव लोअर रिस्ट्रिक्शन कि हमेशा साइन इसको लोअर ले साइड में करेंगे। तो मिनिमाइज जेड x1 minus thrice of x2, x1 minus thrice of x2, x1 minus thrice of x2 minus 2 so x3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पुट करने पर x3 डबल डैश। अब क्या करें कि अब सब्जेक्ट टू, अब चूँकि मिनिमम है तो वी हैव टू ऑलवेज कीप द कंस्ट्रेंट साइज इन दिस फैशन, लाइक हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू में हो, क्योंकि हमें अगर हमें मिनिमा निकालना है, अगर ये ऐसा हुआ तो हमें अपर बाउंड मिल रहा होगा तो मैक्सिमम मिल रहा होगा। बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर कि समझने का भी है कि लाइक एक अपर बाउंड मिनिमा निकालने का एक लोअर बाउंड होना चाहिए। मतलब अपर तो अपन कहीं भी जा सकते हैं, एक लोअर बाउंड होगा तभी अपन मिनिमा निकाल पाएंगे। अपर के लिए तो अपन इन्फाइनाइट भी जा सकते हैं। अगर इसका मैक्सिमम निकालना हो तो इट विल बी गोइंग टू इन्फाइनाइट, क्योंकि अपन एक लोअर बाउंडेड नंबर से घिरे हुए हैं। बाकी तो वेरिएबल के तो जा तो कहीं भी सकता है। सो द कंस्ट्रेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। सो अब उसे क्या करा कि 3x1 प्लस x2 माइनस 2 x3 डबल डैश x3 डबल डैश minus 7 times of x1 minus 4 of x2 greater than 12 minus 4x1 plus times of x2 8x3। अब जो कि जहाँ भी इक्वलिटी हो ना तो इक्वलिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऐसे एंड ऐसे। लेट मी राइट फॉर यू। क्योंकि अब इन दोनों का मतलब है कि a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों a और b दोनों बराबर है। ये चीज़ अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्न में बहुत सारे चीज़ करते हैं कि मतलब चीज़ को सबसेट दिखाना हो, सब दोनों को इक्वल दिखाना हो a और b को, तो क्या करते हैं a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो दोनों मिला तभी होगा जब a और b दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिला के अपन यही कर रहे हैं। अपन x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, अब चूँकि एक मिनिमम एक वो भी आएगा 10, तो अब क्या करते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्मेट में चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो आई एम राइटिंग टू डुअल। अब डुअल में क्या करते हैं ना कि लाइक लेट y1 y2 y3 y4 बी डुअल वेरिएबल वेरिएबल्स इन डुअल इक्वेशन। सो मैक्स, अब चूँकि अब सब चीज़ें उल्टा हो जाता है। लाइक यहाँ पे वेरिएबल रिवर्स हुआ, यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज होता है, तो मिनिमाइज कब मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज से W इज़, अब ये सारे जो ये कोफिशिएंट, ये जो नंबर्स हैं कोफिशिएंट है B के, मतलब आर साइड में नंबर्स, वो इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो -7 y1 प्लस 12 y2 प्लस 10 y3 माइनस 10 y4, दिस इज द थिंग। एंड नाउ अब ये x1 जो कोफिशिएंट है, ये सारे कोफिशिएंट है, अब ये सारे इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे सब्जेक्ट टू माइनस थ्राइस y1। अब ये जो कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले इक्वेशन में वो y2 का कोफिशिएंट हो जाएगा, y2 का कोफिशिएंट हो जाएगा। ये जो तीसरे वाले में है वो y3 का कोफिशिएंट हो जाएगा, ऐसे ही।
minus 4y3 plus 4y4 is अब ये जो होगा, अब इसका कोफिशिएंट आएगा. अब चूँकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, अब यहाँ पे आ जाएगा उल्टा 1 किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट. सिमिलरली y1 इसका कोफिशिएंट -4 y2 प्लस थ्राइस ऑफ y3 माइनस थ्राइस ऑफ y4. अब क्या करें कि अब चूँकि अब इक्वल ग्रेटर देन था, अब इक्वल होगा, अब कोफिशिएंट इसका आएगा -3. बस चीज़ें हो जाएंगी. y1 प्लस 0 कुछ है ही नहीं, प्लस 8y3. मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली सामने. 2y1 प्लस 0y2 माइनस लिखना था. सो दिस इज द डुअल ऑफ द गिवन इक्वेशन. और मैक्सिमाइज करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है. अगर मैं सर्च करूँ तो इट विल टेक टाइम, सो आई विल बी लेटिंग यू नो इन नेक्स्ट वीडियो जो होगा आई विल कन्वे यू कि कहाँ मैंने गलती करी. ओके, so last question I think it was last question was like bigger method, like bigger we have already done it. यही सेम मेथड था, ये वाला जो इक्वेशन हमने सॉल्व कर रहे थे ना, ये इज़ नथिंग बट बिगम का एप्लीकेशन. बिगम में क्या होता है कि अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाते हैं, तो बस वहीं किया अपन ने. बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन वेरी एक्यूरेटली. सेम मतलब कैलकुलेशन गलतियाँ होगी तो मतलब यू विल नॉट गेट द फाइनल सोल्यूशन. इसको करने पे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. एक आंसर आ जाएगा 26. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रीवियसली, बिगम मेथड. इवन 2023 वाले पेपर में भी हमने डिस्कस किया. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. यू कैन डू इट. आई विल अपलोड द PDF. यू कैन चेक द आंसर्स. ओके देन, थैंक यू. ये वाला हुआ नहीं तो वो कहाँ गलती हो रहा था. आई विल लेट यू नो नेक्स्ट वीडियो कहाँ गलती कर रहे हो. ये पॉजिटिव आना चाहिए था, सॉरी नेगेटिव आना चाहिए था. देन ओनली वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड ऑप्टिमम. बट समथिंग इज फिशी हियर. ओके देन, थैंक यू ऑल.